Hello everyone, welcome to Manavar Education. In this video we are going to discuss the most important current affair from this week for IPM, BBA, BMS, BCom examination, and we have included the most important current affair from this week as well as some of the important static portion related to that current affair. So we will discuss in this session. So let's start this video. Before that, here is some important information regarding our self-study program. So if you want to join us through self-study, you can visit our offline center, that is Vasai, Thane, Dadar, Borivali, Andheri, Pune. If you are not Mumbai or Pune based, then you can call on this number for online classes on Point India level, and the counselor will guide you each and everything. Else, if you want to join us through website, I will give you a tour guide of the website from where you can avail each and everything for BBA examination. So let's go there. So you have to come to the manavaredu.com. Here you will find out about the BBA entrance examination. Click on that. And you will get here the all BBA exam. So यहाँ पर आपको all BBA exam मिल जाएगा. Live classes are also available here. So classroom, self study, sectional, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी. So you can have the classroom coaching as well as the self study programs you can avail from the website as well as the sectional program. आप अलग अलग section के लिए भी program opt कर सकते हो. So you can each and everything from the website. So kindly check the description box. You will find the link there. So let's start this session now. And the first question is, who has become the new test captain of the Indian cricket team? So we know that कि Rohit Sharma and Virat Kohli has retired from the test cricket, Indian test cricket team, and now new captain has been announced. और किनको जो है new captain बनाया गया है? हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, शुभमन गिल और ऋषभ पंत. And the correct answer is शुभमन गिल. So the Board of Control for Cricket in India (BCCI) has announced the squad for the upcoming Test series against England, and Shubman Gill has been named the captain of the Indian cricket team. That is he is the 37th captain, and ऋषभ पंत जो है वो क्या है, वाइस कैप्टन बनेंगे. तो इस तरह से इंडिया टीम जो है अब फॉर्म हो गई है. टेस्ट कैप्टन शुभमन गिल है और वाइस कैप्टन जो है वो ऋषभ पंत को बना दिया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चोंजिन Angmo has climbed Mount Everest. She has become the first blind woman to complete the climb. She belongs to which state? तो ये चोंजिन एंगमो है और इन्होंने जो है माउंट एवरेस्ट को जो है क्लाइंब किया है. एंड शी इज़ ब्लाइंड, सो आई साइट नहीं है और उसके बाद भी इन्होंने जो है माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किया है. और ये किस स्टेट से बिलोंग करती हैं? शी इज़ द फर्स्ट ब्लाइंड वीमेन, मतलब इंडिया से पहली ऐसी हैं जो आपको इन्होंने जो ये काम किया है. तो किस स्टेट से बिलोंग करती हैं? सिक्किम, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश. एंड द करेक्ट आंसर इज हिमाचल प्रदेश. सो चोंजिन एंगमो हैज बिकम द फर्स्ट ब्लाइंड वीमेन इन इंडिया टू होइस्ट द ट्राइकलर ऑन द पीक ऑफ माउंट एवरेस्ट. शी हेल्स फ्रॉम किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश. सी बिकम द 5th पर्सन इन द वर्ल्ड टू क्लाइंब एवरेस्ट डिस्पाइट बीइंग ब्लाइंड. तो ये जो है 5th पर्सन बन गई है. और वी नो दैट माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ द वर्ल्ड. दैट इज 8848 मीटर जो है अप्रॉक्सीमेटली इसकी हाइट आपको देखने को मिलेगी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंट्री हैज ज्वाइंड द न्यू डेवलपमेंट बैंक? न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB, दैट इज ऑल्सो नोन एज ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जाना जाता है. और अभी जो है इसके नए मेंबर कौन बन गए हैं NDB के? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. कोई भी इंक्लूजन होता है किसी इंस्टीट्यूशन में, इंटरनेशनल बॉडी में, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है. नाइजीरिया, अल्जीरिया, अर्जेंटीना, बेलारूस. एंड द करेक्ट आंसर इज अल्जीरिया. सो अल्जीरिया हैज़ फॉर्मली अज्यूम्ड मेंबरशिप ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक, and Algeria has become the 10th member of the new development bank. मेंबर्स कौन कौन है इसके? ब्राज़ील है, रशिया है, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, UAE, इजिप्ट, इंडोनेशिया और अल्जीरिया. अभी इंडोनेशिया जो है वो फुल टाइम मेंबर बना है. किसका? दैट इज़ ऑफ द ब्रिक्स का फुल टाइम मेंबर अभी इंडोनेशिया भी बना है. सो दिस इज ब्रिक्स. अभी रिसेंटली में ब्रिक्स की जो समिट है वो कहाँ हुई थी? दैट इज इन द कजान, रशिया में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंट्री हैज़ बिकम द 4th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड? तो अभी इकोनॉमिक तौर पे लार्जेस्ट इकोनॉमी जो है वो 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी कौन सी कंट्री जो है वो बन गई है? ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. जापान, फ्रांस, इटली, इंडिया. एंड द करेक्ट आंसर इज इंडिया. इंडिया हैज़ ऑफिशियली सरपास जापान टू बिकम द वर्ल्ड्स 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी. और ये नीति आयोग के जो CEO हैं हमारे BVR सुब्रमण्यम, उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन दिया है. IMF की रिपोर्ट आई है जिसमें ये कहा गया है कि इंडिया हैज़ सरपास द जापान इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी. तो GDP जो है, नॉमिनल GDP इंडिया की 4.187 ट्रिलियन हो चुकी है डॉलर, एंड दैट ऑफ जापान इज़ 4.186 ट्रिलियन जापान की आपको है. तो इंडिया ने सरपास कर लिया है जापान को इन टर्म्स ऑफ द GDP. अब सिर्फ कौन है? चाइना, US
एंड जर्मनी जो है इंडिया से आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ इंडिगो। तो इंडिगो एयरलाइंस ने अपना चेयरमैन अपॉइंट किया है। सो हु बिकेम द चेयरमैन ऑफ इंडिगो? वेंकटा सुमंत्रन, अरुण कुमार, विक्रम सिंह मेहता, पीयूष गोयल। एंड द करेक्ट आंसर इज विक्रम सिंह मेहता। सो इंडिगो, द कंट्रीज लार्जेस्ट एयरलाइन, हैज़ अपॉइंटेड विक्रम सिंह मेहता एज द न्यू चेयरमैन, और इन्होंने जो रिप्लेस किया है, ही रिप्लेस द फॉर्मर चेयरमैन वेंकट सुमंत्रन को इन्होंने रिप्लेस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ एशियाटिक लायंस फाउंड एट प्रेजेंट। तो अभी सबसे ज़्यादा जो है एशियाटिक लायंस कहाँ देखने को मिला है? लार्जेस्ट अभी जो है ये हुआ सेंसस हुआ है लायन का, तो उसमें लार्जेस्ट पॉपुलेशन लायन का आपको कहाँ मिलेगा? काजीरंगा नेशनल पार्क, रणथंबोर नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क, सुंदरबन टाइगर। एंड द करेक्ट आंसर इज गिर नेशनल पार्क। सो गुजरात चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल हैज़ रिलीज द न्यू फिगर्स ऑफ द लायन काउंट 674 था 2020 में, जो कि बढ़ के कितना हो गया? दैट इज 891। सो लायन का जो है पॉपुलेशन वो इंक्रीज हो चुकी है एंड इट हैज़ बिकम 891। सो गिर नेशनल फॉरेस्ट में जो है आपको ये देखने को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कैंपेन अगेंस्ट प्लास्टिक पॉल्यूशन हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय एनवायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव। तो सबसे पहली बात तो ये कि एनवायरमेंट मिनिस्टर कौन है हमारे? तो भूपेंद्र यादव है, और उन्होंने प्लास्टिक पॉल्यूशन को कटेल करने के लिए, उसको रिड्यूस करने के लिए, उसके रिगार्डिंग अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कौन सा जो है मिशन लॉन्च किया है, कैंपेन लॉन्च किया है? वन नेशन वन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, डिजिटल इंडिया मिशन, नन ऑफ द एबव। एंड द करेक्ट आंसर इज वन नेशन वन मिशन। सो यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव हैज़ लॉन्च्ड वन नेशन वन मिशन, और इसका जो कैंपेन का मोटो क्या है? एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन और कैंपेन अगेंस्ट प्लास्टिक पॉल्यूशन। दिस इज द मोटो ऑफ द वन नेशन वन मिशन कैंपेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इज कॉमनवेल्थ डे सेलिब्रेटेड। कॉमनवेल्थ क्या है? कॉमनवेल्थ एक इंस्टीट्यूशन है, एक ग्रुप है, दैट इज द ग्रुप ऑफ कॉलोनियल कंट्रीज, जो है जो भी कॉलोनी थी ब्रिटिश की एट ए टाइम, अप्रॉक्सीमेटली 54 कंट्रीज आर द मेंबर ऑफ द कॉमनवेल्थ, एंड ये सब जो है डेमोक्रेटिक कंट्री मोस्टली है, और ये यहाँ पर कॉमनवेल्थ गेम्स भी होता है हर 4 साल पे। तो ये कॉमनवेल्थ डे जो है कब सेलिब्रेट किया जाता है? 22 ऑफ मई, 23 ऑफ मई, 24 ऑफ मई, 25 ऑफ मई। एंड द करेक्ट आंसर इज 24 ऑफ मई। सो कॉमनवेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन May 24, और इस डे को क्यों सेलिब्रेट करते हैं? दैट ये जो है आपको ब्रिटिश जो क्वीन थी, दैट इज़ क्वीन विक्टोरिया, उनका बर्थडे है ऑन 24 ऑफ मई 1819, तो इसी की वजह से इनके बर्थडे के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है। और इसमें कौन सी कंट्री है? दैट वंस रूल्ड बाय द ब्रिटिश एम्पायर, तो उन सब की जो है यहाँ पर ये सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट इज हु हैज सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन इन द मेडल टैली ऑफ द खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025। सो खेलो इंडिया बीच गेम्स ऑर्गेनाइज किया गया था, और इसमें नंबर 1 पोजीशन पे जो है वो कौन सी टीम थी? दिस इज इम्पॉर्टेंट कि आपको स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई भी चीज़ें जो इंडिया में ऑर्गेनाइज किया जाता है, दैट इज़ बाय द गवर्नमेंट और बाय द दैट इज़ इंटरनेशनल लेवल, सो वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इसको किसने जीता है? इसमें सबसे ज़्यादा मेडल टैली में नंबर 1 पोजीशन पे कौन सी टीम थी? मणिपुर, महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली। एंड द करेक्ट आंसर इज मणिपुर। सो बीच गेम्स 2025 इवेंट दैट इज़ फ्रॉम 19 to 24 मई 2025, और ये वेन्यू जो था वो था गोगला बीच एंड DIU बीच, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। यहाँ पर जो है ये मैच किया गया था। इसका मैस्कट क्या था? दैट इज़ पर्ल डॉल्फिन जो है मैस्कट था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 78th कांस फिल्म फेस्टिवल 2025 हैज़ बीन हेल्ड इन विच कंट्री? सो 78th कांस फिल्म फेस्टिवल जो है ये कब से ये कहाँ होने हुआ है? अभी ऑर्गेनाइज किया गया था। सो दिस फेस्टिवल हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड इन विच कंट्री? कांस कहाँ होता है सभी को पता होगा, लेकिन इससे जुड़े जो अवार्ड हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो जर्मनी, फ्रांस, रशिया, अमेरिका, एंड द करेक्ट आंसर इज फ्रांस। तो ये एडिशन कितना था? दैट इज़ द 78th एडिशन ऑफ दिस कांस फिल्म फेस्टिवल, और इसमें जो है पाल्मे दौर दैट इज़ द बेस्ट मूवी वो किसको मिला है? दैट इज़ इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट, जफर पनाही की मूवी है, इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट। ग्रांड प्रिक्स जो सेकेंड जो मूवी होती है वो किसको मिला है? जोशिम ट्रियर, सेंटिमेंटल वैल्यू। बेस्ट डायरेक्टर दैट इज़ गिवन टू क्लेवर मेंडोनका फिल्हो, सीक्रेट एजेंट के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस नादिया मेलेटी, द लिटिल सिस्टर, एंड द बेस्ट एक्टर वैगनर मोरा, द सीक्रेट एजेंट। तो ये जो है सारे मूवीज़ को आपको नाम याद रखना है, इंपॉर्टेंट हो जाता है कांस फिल्म फेस्टिवल में। So these are the 10 most important
current affair from this week. Now we will discuss some of the important static portion related to these current affair. So let's go through the next question, that is Cricket World Cup 1983 was held in which of the following places. तो स्टैटिक पोर्शन हम स्पोर्ट्स से कर लेते हैं. क्रिकेट की बात हमने किया था कि अभी शुभमन गिल को टेस्ट टीम का कैप्टन बना दिया गया है. तो पहली बार जो इंडिया जीता था पहली बार वर्ल्ड कप 1983 में, ये वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज कहाँ किया गया था? इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज़, इंडिया. एंड द करेक्ट आंसर इज इंग्लैंड. यहाँ पर जो है ये इंग्लैंड में जो है ये वर्ल्ड कप हुआ था, दैट इज इन द इंग्लैंड, and it was hosted by England. The tournament took place from 9th of June to 25 1983 and Kapil Dev was the captain and we have defeated the West Indies cricket team. Earlier West Indies ने 2 वर्ल्ड कप जीत लिया था, 1975 का और 1979 का वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज़ ने जीत लिया था. And this is the third time West Indies has reached the final, but in the final India has defeated the West Indies to win the world cup. नेक्स्ट जो इंडिया जीता था वो दैट इज इन 2011 अंडर द कैप्टनशिप ऑफ महेंद्र सिंह धोनी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द फर्स्ट वीमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट इन द वर्ल्ड. तो वर्ल्ड में सबसे पहली वीमेन कौन थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया है? तो अभी हमने देखा कि ये जो है ब्लाइंड जो गर्ल है इंडिया से, उन्होंने क्लाइम किया था. और अब कौन सी जो पहली जो थी सबसे पहली कोई भी वो किसने किया था वीमेन के तौर पे? तो जंकू तबई, लीला शेठ, अरुणिमा सिंह, वचंद्री पाल. And the correct answer is Janku Tabai. The first women to climb Mount Everest was Janku Tabai. She reached the summit on May 16, 1975. और ये जो है एक जापानीज माउंटेनियर है और जिन्होंने जो है क्लाइंब किया था. इंडिया की तरफ से जो सबसे पहले पर्सन थी, सबसे पहली वीमेन थी, वो थी बचेंद्री पाल जिन्होंने माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किया था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज द फर्स्ट ब्रिक्स समिट हेल्ड. तो सबसे पहली बार ब्रिक्स समिट कब हुआ था? ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या? ब्रिक्स इज द एक्रोनिम ऑफ ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका. सो द फर्स्ट टाइम दिस समिट हैज बीन हेल्ड इन विच ईयर? दैट इज इन 2008, 2009, 2010 एंड 2011. एंड द करेक्ट आंसर इज 2009. सो द इनॉग्रल ब्रिक समिट टुक प्लेस इन याकातेरिनबर्ग जो कि रशिया में 2009 में हुआ था. और ये 4 हेड उस टाइम में ब्राज़ील, रशिया, इंडिया ने ही इसको अटेंड किया था. Jim O'Neill was a British economist who gave the term BRIC, that is of the 4 emerging economy of the world, ये टर्म दिया था. तो ये पहला समिट 2009 में हुआ था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज केबुल लामजाओ नेशनल पार्क इज लोकेटेड ऑन विच लेक. केबुल लामजाओ नेशनल पार्क ये किस लेक पे लोकेटेड है? केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है कहाँ? दैट इज इन द मणिपुर. और ये कौन सा लेक पर है? कोलेरू लेक, वुलार लेक, डल लेक, लोकटक लेक. एंड द करेक्ट आंसर इज लोकटक लेक. So Kebil Lamjao National Park, the only floating park in the world, is located in the Loktak Lake. Loktak Lake जो है आपको मणिपुर में लेक मिलेगा, दैट इज़ द फ्रेश वाटर लेक मिलता है. ये दिस इज़ द फ्रेश वाटर लेक. और यहाँ पर आपको एक ही जो है फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, उसका नाम है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क. तो ये भी याद रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन एन ऑस्कर. तो ऑस्कर सबसे पहली बार किस इंडियन को दिया गया था? सत्यजीत रे, भानु अथैया, रेसुल पुक्टी, AR रहमान. एंड द करेक्ट आंसर इज भानु अथैया. सो द फर्स्ट इंडियन टू विन एन अकेडमी अवार्ड was भानु अथैया and she won for best costume design for the film गांधी in 1983. तो गांधी मूवी है जिसके एक्टर आपको देखेंगे मिलेंगे बेन किंग्सले. बहुत अच्छे एक्टर हैं और बहुत अच्छी मूवी भी बनाई गई है. मोर देन 3 आवर्स की मूवी है लेकिन बहुत अच्छे से उसको फिल्माइज किया गया है. तो ये मूवी बहुत अच्छी है, आप देख सकते हो. हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देख सकते हो. बहुत सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन वहाँ से आपको मिल जाएगी. शी शेयर द अवार्ड विथ हर ब्रिटिश काउंटर पार्ट जॉन मोलो. तो ये जो है भानु अथैया है जिनको सबसे पहली बार इंडिया की तरफ से ऑस्कर जो है मिला था. तो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस वीक वी हैव डिस्कस्ड इन दिस सेशन. होप यू गाइस हैव एंजॉयड दिस सेशन वेल. इफ सो देन डू like this video, and if you have any query, write in the comment section. We will get back to you. With that we will conclude the session here. Thank you and have a nice day. See you in the next video. Till then, goodbye.